Welcome everyone to the next episode of Impactables with Rishabh. Today we have Akhil Suhag, a successful founder, sold his previous two companies and now working with CleverTap. Welcome Akhil. Hi, thank you so much for having me. So Akhil, you have previously built two companies and obviously all in one was for entirely B2C, another was B2B B2C. And can you walk us through to the journey कि कैसा क्या रहा, आपने कैसे शुरुआत की अपनी जर्नी के बारे में and कैसे अभी जा रहा है चीज़ें? यार I शुरू से I wanted to start something of my own, but कोशिशें भी करता रहा हूँ, but nothing picked up. So finally, FanFight was the first real attempt, which was a gaming platform that I started in 2016, late 2015, early 2016, while I was a student at ISB only. So that is when I started, which was purely B2C. And I think started with उस time कितना I had a lakh in my bank, so I still think about कि कैसे बना वो, scaled it to about 50 CR in revenues when we got acquired. Then again, I am predominantly a B2C founder. So I started building B2C again, but some things happened, market changed and stuff, where we decided कि अच्छा let's move to B2B because more predictable revenues in B2B, right? आप एक कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो उसके लिए पैसा दे रही है, रेवेन्यू आ रहा है, चल रहा है. तो which is why we wanted to build live commerce, which was doing decently well from a growth GMV standpoint. But 22-23 में एकदम ही मार्केट ऐसी हो गई थी. 21 में it was like Booming. raise as much as you want when you want, crazy. So we thought let's build live commerce, which would have been in some ways category creation and a lot of user behavior change, right? जिसके लिए पैसा लगता है. तो when we realized कि अच्छा हमारा GMV almost triple 2.5-3 times हो रहा था every month, but we realized GMV पे पैसा उठेगा नहीं अब, and let's pivot to something more B2B, and which is where we pivoted to Rehook, which was a problem we really were solving for in FanFight itself. सारा promotions और coupons, loyalty वगैरह automate करना for other companies. So we knew the in and out of that problem. Pivoted to Rehook, scaled that. बहुत different learnings both from B2C and B2B हो जाती है. तो realized both have different things to teach you, but also that I am more of a B2C guy. Like that is where my mind runs more and I find more interesting. Yeah, so that's been So the journey the entire so far. FanFight journey, it was completely bootstrapped, right? Not completely bootstrapped. We did raise some rounds. The good part is like we raised 3 rounds, Okay. but much smaller, जो कि अभी काउंट ही नहीं करेंगे लोग, क्योंकि 2015 में उतना रियल मनी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था. तो माय फर्स्ट राउंड वाज 1 CR. Okay. So in totality we raised about 23 CR in FanFight. This we revenues reached 50 CR a year, but very small rounds. The last one was strategic also, which the person who ended up acquiring us as Okay. well. अच्छा, the third round was strategic and उसके बाद उन्होंने acquire कर लिया था. Yes, exactly. Okay. Yeah. So how was the journey of building companies and acquisition? क्योंकि acquire होने में बहुत सारी चीज़ें होती है. Like right from you see कि उस वाली कंपनी के साथ मैं अच्छे से घुल मिल पाऊंगा कि नहीं, and whether I will be able to work with that company or not. Yeah. क्योंकि currently the company which you have sold your second company, you are working with them. Yeah. So how is this one particularly different from the first one? And क्या was your learnings from these acquisitions? Yeah, you also learn a lot of this once you go through them. So the second time I had a checklist probably, which the first time I did not have. Okay. मतलब तुम पढ़ते तो हो बहुत कुछ क्या चाहिए ये देखना, but once you are going through an acquisition, your brain also tells you कि ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, let's move ahead in that direction. So you're right. I think founders of the acquiring company or whoever running the acquiring company, how do you mentally align with them becomes very important. Whether you are operating separately as a vertical within,
or even though you are a part of their larger product, but still do you have that autonomy on the side or not? What their future roadmap for you is, because a lot of acquisitions also happen कि we'll acquire, kill the product, right? But that clarity from the beginning needs to be important, है ना? So once if there's a certain clarity, but then there's a pivot in that clarity post acquisition, that is where a lot of things don't align with the founder, और वो फिर मोटिवेशन किल करता है. तो जितना पहले वो जो होता है कि यू मस्ट हैव अक्वायर्ड समवन, बट 6 months इन यू रियलाइज कि अच्छा इसको बिना बात पैसा खर्चा हो रहा है, इसको बंद ही कर देते हैं. अच्छा, व्हाई नॉट, राइट? तो a lot of clarity while you are going through those discussions, but even then things might change post, where then the human level becomes more important. कि founder कैसे है, बात करने में ठीक है कि नहीं, is there a logical way you can discuss with them? I've also seen a lot of founders with I am right no matter what sort of complex, right? Because which is okay, you've built a huge thing, so somewhere you start believing I know what I'm doing, right? So which I understand, but for the person getting acquired, it might be tough. So you have to look at a lot of things before you end up doing something like that, especially for something you've spent 8, 5, 6 years building over time. तो उस टाइम पे आप मेंटली कहाँ पे हो? दूसरी चीज़ भी है इसमें कि देयर इज अ केस के वेयर यू हैव चेकड आउट कि आई वांट टू सेल दिस, मे बी स्टे हेयर फॉर अ ईयर, बट आई एम डन विद दिस, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. करेक्ट. ठीक है, तो वो अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है. बहुत जरूरी है. नहीं तो दूसरे आदमी को लगेगा कि ये पागल बना के चला गया. और ऐसा भी लगता है कि फिर मैं इसको और रन करना चाहता हूँ, ये भी आ सकता है. तो दोनों केसेस है कि एक है कि आप भी स्विच हो जाओ आगे जाके, या आपका अभी यू आर सेलिंग इट सेइंग के नो आई वांट टू वर्क ऑन दिस फॉर नेक्स्ट 5 months, बिल्ड इट ह्यूज विद यू, व्हिच यू आर जस्ट सेइंग टू फॉर द सेक ऑफ मेक हिम साइन इट, राइट? तो वो दोनों तरफ ही खेलने को खेला जा सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज फाइनली इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑल्सो, राइट? तो आज if you are not being truthful to someone, tomorrow it will come back to bite you some way Correct. or the other. So that clarity and truthfulness is important to yourself also first, and to the guy acquiring, and similarly from the other way. But did anything help you, like you raised in first company, which is a smaller money, because 1 crore first round in RMG is nothing. उतना तो मंथली स्पेंड होता है लोगों का RMG में. तो उस समय तक भी इतना स्पेंड होता था लोगों का. अब तो 2024-25 तक तो बहुत स्पेंड करते थे लोग. बट व्हेन इट कम्स टू जो आपने YC से रेस किया था रीहुक में, so did it help like कि that particular journey of understanding the business, scaling the business, raising money and selling the company? तो वो जो चारों एक्सपीरियंस था आपका, I think for 6 years ना, 6-7 years. Yeah. So did that help you in raising money from YC? यार फैन फाइट ने ना एग्जीक्यूशन मसल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी. ठीक है, मतलब ऐसा हो गया था कि बिकॉज अगेन आई थिंक विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी वर एबल टू बिल्ड इट, वी हैड टू फाइंड वेरी अंडर अप्रिशिएटेड चैनल्स इनिशियली ऑल्सो, कि सस्ते में कैसे स्केल करना है इसे, राइट? वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल्स जो कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो टीम देते थे, वी स्टार्टेड यूजिंग देम एंड स्टफ, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. If you want to advertise on a ClickBuzz, you need a certain budget to even think about Correct. it. Right? So, I really think raising too early is also a problem, which I realized with my second. अच्छा, second. Yes. Not with the fan fight. नहीं. उसमें हमने लेट रेस किया था. उसमें तो पैसे कभी थे ही नहीं ना इनफ, तो बाद में भी रेज हुआ, कम पैसे से काम करना सीखा. धीरे धीरे पैसा आया कि अच्छा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो ऑप्टिमाइजिंग बिकेम इम्पोर्टेंट. सो इट वाज इनिशियली यू स्टार्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स ऑल्सो, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट. सो यू फिगरिंग आउट कि अच्छा ये कंज्यूमर कहाँ मिलेगा, वहाँ पे क्योंकि सस्ते में कंज्यूमर लेना है तो जहाँ वो बैठा है उसके पास जाना पड़ेगा, राइट? तो ऑल्दो my fan fight success made it easy for me to raise,
But I think raising too early becomes A problem. might be, क्योंकि फिर तुम वैलिडेशन पे उतना ध्यान नहीं देते, Okay. राइट? कुछ फाउंडर्स का ऐसा होता है कि फंडिंग बिकम्स वैलिडेशन ऑल्सो, कि अच्छा फंडिंग आ गई, अभी एग्जीक्यूट करो, Correct. कि जबकि इनिशियली टाइम स्पेंड करना होता है, क्या प्रॉब्लम डीप इनफ है, क्या किसी कौन पे करेगा इसके लिए, क्यों पे करेगा इसके लिए. तो एक दो स्टेप्स मिस हो जाते हैं बहुत जल्दी पैसा उठा के. वाईसी के केस में ये भी होता है कि आपका वाईसी हो गया आज, एंड 3 months डाउन द लाइन इज योर डेमो डे, Okay. राइट? एंड यू रेज योर सीड मनी ऑन योर डेमो डे. तो 3 महीने में आपको स्केल करके दिखाना है ताकि आपका सीड उठ पाए. तो आप वैलिडेशन पे कितना ध्यान दोगे, Correct. राइट? आप है कि स्केल करो अभी इसे ताकि डेमो डे पे पैसा उठ जाए. तो तुम द डे यू रेज योर फर्स्ट चेक इज द डे यू स्टार्ट दैट रैट रेस, राइट? कि 3 महीने में ये करना है, अब 6 महीने में अगला उठाना है तो वो करना है, तो तुम भागे जा रहे हो. तो आई थिंक यू नीड सम टाइम बिफोर दैट टू slowly understanding, validating and moving. When I say slow, I mean not focused on growth, but focused on the problem and the solution and who are you solving it for, कहाँ पे है ये customer, and then once you figured that out, getting into the rat race becomes easier overall to build a sustainable business. In this only, like initially when you started building Swapper TV नाम था ना, Yeah. उसी को आपने Rehook में बदला था ना? हाँ. तो जब आपने रेस किया, then you started finding the PMF वगैरह कुछ, हाँ. then you pivoted to Rehook. Yeah. Rehook worked for you, right? Rehook worked. तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, यहीं पर बहुत सारे फाउंडर्स डू द मिस्टेक. हाँ. इस ट्रांजिशन को या तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं या बहुत लेट समझते हैं. जब बैंक में मान लो आपने 10 रुपये रेस किए, आपका 1 रुपये बचाओ, वो तब समझते हैं. अब वो 1 रुपये से पिवट करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू आप 5 रुपये से पिवट कर रहे हो आधे पैसे के बाद. सो व्हाट वाज योर मोमेंट यू रियलाइज्ड कि अब आई हैव लेफ्ट विद दिस मच मनी, नाउ दिस इज नॉट वर्किंग एंड दिस इज द राइट टाइम, आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग. यार एक तो ना फाउंडर्स को अंदर से पता चलने लग जाता है. देयर आर, यू स्टार्ट गेटिंग अ सेंस कि किसी को जेन्युइन पुल मार्केट में दिख रहा है कि नहीं, या कोई इसके लिए पे करने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं. यू स्टार्ट गेटिंग दैट सेंस, बट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो योर सॉर्ट ऑफ बेबी इन दैट सेंस, एंड तुमने सोचा है और तुमने पूरी दुनिया को कल तक बताया है कि ये तो आफ्टर स्लाइस्ड ब्रेड दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट? सो इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. तुम वो सिग्नल्स इग्नोर करते हो, मतलब दिस इज मोर फाउंडर साइकोलॉजी देन एनीथिंग एल्स, कि तुम अपने आप को भी बोलते हो नहीं चलेगा. एक वो बात होती है. दूसरी होती है फाउंडर ईगो भी होती है, कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी, बट मुझे पता है कि इसमें लगा रहूँगा मैं और मैं इसको चला के दिखाऊंगा, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, राइट? सो इफ़ यू आर, it is very important for a founder to be absolutely completely truthful to himself to figure out कि नहीं, अगर ये चलेगा भी तो ये शायद 1 साल बाद, मतलब मीनिंगफुल रेवेन्यू कब आएगा इससे, और क्या मुझे रेज करने के लिए रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ ग्रोथ से चल जाएगा. वो सब सच्चाई तुम्हें अपने आप को बतानी पड़ेगी. तो फॉर मी इट वाज लाइक कि हाँ यूज़र बिहेवियर चेंज हो रहा है, हाँ कैटेगरी क्रिएशन हो रही है, बट इसमें एक तो इतना पैसा लगेगा और इतना टाइम लगेगा. Correct. वो मेरे पास नहीं है. तो या तो मैं धीरे धीरे 2 साल बाद मरूंगा, या फिर मैं अभी चेंज करके आई कैन गिव माई सेल्फ अ फाइटिंग चांस टू फाइट इन सम अदर मार्केट, राइट? तो इतना ईजी नहीं होता, इतना ट्रूथफुल होना भी, विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. रियलिटी चेक बोल सकता हूँ कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना. हाँ, बट उसमें भी गलतियाँ होती हैं. मैंने, आई डोंट वांट टू से आई वाज कंप्लीटली परफेक्ट हाउ आई डिड इट, बिकॉज इवन देन आई थिंक आई ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर एट दैट मोमेंट. दीज आर थिंग्स जो मैं बेटर कर सकता था, वो बता रहा हूँ अभी मैं, कि थोड़ा और टाइम ले सकता था. पर ये तुम सबको लगता है ना. हाँ वो आफ्टर अ जर्नी यू सिट डाउन एंड रियल स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ के और क्या बेटर और कर ये सकता था उनको सबसे ज़्यादा लगता है जो एटलीस्ट मुझे लगता है ना 5 साल गुजार लिए हों
ये हाँ। उनको बहुत वो बैक ट्रेस बहुत करते हैं वो, हाँ। पीछे जाके देखते हैं कि हमें इसको ये ऐसे भी कर सकता था। हाँ, तो क्या वो सोचना और ये थोड़ा सा पीछे जाके सोचना ये ठीक है, आई मतलब क्या थिंक है? मैं ज़्यादा वो सोचता हूँ आगे के लिए हाँ, कि पिछली जर्नी में और क्या चेंज कर सकते थे या क्या स्टेप्स और बेटर हो सकते थे कि आगे नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाए। तो मैं वो उसको रिग्रेट की तरह से नहीं, इट इज जस्ट अ लर्निंग। या मैं बात भी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे रिग्रेट है कि ये नहीं किया, क्योंकि वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बट अगर तुम अपनी जर्नी से नहीं सीखोगे तो दिक्कत है। तो मेरे को ये भी पता चला है कि दूसरों की बातें पढ़ पढ़ के तुम सीख लेते हो, बट तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। नहीं होता है। तो ये आप हम दोनों बहुत रिलेट कर पा रहे हैं हाँ, इस बात से, हाँ। क्योंकि दूसरों की बातें पढ़ लेंगे, देख लेंगे वो कैसे कर रहा है, बट वो- उसका ना कॉपी होगा ना इम्प्लीमेंट होगा। सबकॉन्शियसली तुमको पता ये करना चाहिए, बट तुम्हारा ब्रेन किसी तरह तुम्हें वो नहीं करने देगा। लोगों को मैं यही बोलते बोलते थक गया हूँ कि प्लीज डोंट कॉपी द थिंग विच इज वर्किंग फॉर देम। जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए वर्क करेगी, हाँ, तो मतलब अपना तरीका देखो। हाँ। तो देन इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू गो बैक एंड फिगर आउट कि क्या क्या सीखा जा सकता है, ताकि फिर ना हो, क्योंकि अपनी लाइफ से ही सीखोगे, खुद ही गिर के ही सीखोगे। करेक्ट। वो थोड़ा ब्रॉड डायरेक्शन दूसरों की किताबें तुमको दे देंगी, बट लार्जर थिंग्स यू लर्न फ्रॉम फॉलोइंग योर सेल्फ एंड गेटिंग अप योर सेल्फ। तो विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि पीछे जाके सोचना कि और क्या बेटर हो सकता था, और क्या सोचा जा सकता था, उस टाइम पे क्या इग्नोर किया जो नहीं करना चाहिए। ये जो पिवट की जो जर्नी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल, ये इजी नहीं है, हाँ, क्योंकि आप सोचो कि पूरा का पूरा टेक बनाया किसी चीज़ को, उसको बंद करके हाँ। अब अपनी टीम को बोलो कि इसको छोड़ दो और अब नया बनाओ, तो वो हाउ डिड यू मैनेज दैट? It is difficult also because you have to let go of some people as well, ओके, and these are people who've left अच्छे well paying stable jobs to come and follow you on a journey that you said कि नहीं हम कुछ बनाएंगे, right? So it starts from there also. The other thing is also you've till now pitched to your employees कि ये बड़ा होगा, and now you're saying कि नहीं होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो मल्टीपल लेवल्स पे एम्प्लॉयज़ के साथ डिफिकल्ट होता है। फ्रॉम पीपल वी लेट गो पर्सपेक्टिव, वी मेड श्योर वी गेट ऑल ऑफ देम प्लेस्ड, विच वाज इम्पोर्टेंट कि ये कोई अपना मेरे ट्रस्ट पे आया है, तो मतलब इट बिकम्स माई थिंग। बीइंग ट्रूथफुल फ्रॉम नॉट व्हेन यू आर पिवटिंग, बट शुरू से to your employees to a certain degree also helps कि this is working, this is not working, तो इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। मेरे लिए ये भी इसलिए भी easy था क्योंकि ये लोग मेरे साथ 10 साल से थे, ओके, right? So core team of Fan5 moved with me to build this, तो I could be very open about सो जो things to them. फैन फाइट मतलब एक्वायर हुआ था, इट वाज एन एक्विजिशन, एक्वी-हायर नहीं हुए थे क्या लोग? नहीं, सब हुए थे, we were about 40 people then, Okay. and 10 of us moved out अच्छा, to, which was the very core of initial Fan5, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोडक्ट अपने टीम्स में ही अब्जॉर्ब कर लिया था मोस्टली। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग विद द टीम ऑलरेडी थी, हाँ, दैट इज अ बिकम्स एन एडिशनल तो इट पॉइंट। बिकेम ईजियर हाँ, देन कि ये ऐसे नहीं हो रहा, तो ये अलग तरह से अब फाइट मारनी पड़ेगी। एंड द पीपल हु वी कुड नॉट, बिकॉज B2C में हमें एक iOS ऐप के लिए चाहिए था, एक एंड्रॉयड ऐप के लिए चाहिए था, और वो हमें अभी SaaS में नहीं चाहिए। तो ऑल ऑफ दोज पीपल वी सॉर्ट ऑफ गॉट प्लेस्ड एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस। वी वर ऑनेस्ट अबाउट कि अच्छा हमारे पास इतना रनवे है, बाय डूइंग दिस हम इसको इतना और एक्सटेंड कर लेंगे, तो वील हैव 2.5-3 years टू फाइट दिस आउट एंड देन move from there. एंड देन क्लेवर टैब रीच्ड आउट टू यू, लाइक यू रीच्ड आउट और इट वाज इसका IB, क्या हुआ था इसका, लाइक हाउ वाज दिस हैपेंड इन दिस? It was a lot of customers we were talking to. We started getting a sense from customers first कि वो चाहते हैं कि ये साथ में हो जाए, ओके, ठीक है? तो they were like can you, I had customers telling me कि can you also add features for sending notifications वगैरह। उसमें आपके में नोटिफिकेशन सेंडिंग का ऑप्शन नहीं था मेरा तो कूपन एंड हाँ। लॉयल्टी एंड ये सब था ऑन ठीक है? सेगमेंट्स, हाँ, तो मतलब अगर ये यूजर 2 बार शॉपिंग किया आपके किसी के वेबसाइट हाँ। में, तो उसको ये कूपन दे दो। तो हमारा काफ़ी पार्ट इन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म से
सिमिलर था कि आपको इवेंट्स भेजने पड़ते थे अपने ठीक आप. है. इवेंट इज एनी एक्शन दैट अ हाँ. यूजर डज ऑन योर प्लेटफॉर्म, Okay. राइट. तो इवेंट्स आ रहे हैं, इवेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जो सब आप क्लेवर टैप को भी भेजते हो. तो वो सब आ रहा है, उसमें हम सेगमेंट भी बनाने दे रहे हैं, उसमें हम रूल भी बनाने दे रहे हैं, उसके बेस पे हम आप कूपन भेज रहे हो या कुछ भेज रहे हो. क्लेवर टैप वुड लेट यू सेंड नोटिफिकेशन, SMS एंड ईमेल्स, राइट. तो कस्टमर्स लाइक के सब कुछ एक जगह हो सकता है, राइट. तो हमें लगे उनसे तो हम compete कैसे करेंगे, मतलब दे आर 100 million ARR वगैरह पे है. हाँ वही. तो उस सेंस में, बट फर्स्ट इनिशियल जो हमें पता चला कि ये साथ में अच्छा करेगा, started coming in from the customers themselves. And speaking to a couple of people in these platforms as well, they were like, our customers have been asking us to build something like this for years now. Okay. कि प्रमोशन स्वीट क्यों नहीं बना रहे हो इसी में. And this was like these customers were using Clever Tap also. हाँ तभी वो सजेस्ट कर पा रहे हाँ. तो क्लेवर टैप और मो एंगेज और ब्रेज और एनी ऑफ दीज, राइट. सो दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू क्लेवर टैप और मो एंगेज टू पार्टनर, कि हम व्हाई डोंट वी अच्छा पार्टनर एंड पार्टनर सेल करके भी टुगेदर, हाँ. right. So initially it was not an acquisition thing, it was a partnership thing. So we cracked a couple of large customers as partners, Okay. right. तो मुझे दो चीज़ें समझ में आनी हुई कि एक तो ये साथ में स्केल मच ईजियर एंड बहुत ज़्यादा आसानी से करेगा, Easy to onboard also. या क्योंकि आधी इंटीग्रेशन पहले से हो रखी है. क्लेवर टैप का कस्टमर ऑलरेडी इवेंट्स भेज रहा है वहाँ पे, सेगमेंटेशन वहाँ पे है, सब कुछ है. तो मच लेसर थिंग्स फॉर मी टू बिल्ड ऑल्सो. तो आई अंडरस्टूड कि ये साथ में स्केल करेगा. द अदर थिंग वॉज फॉर मी टू क्रैक अ कस्टमर, दिस इज समथिंग आई लर्न एज आई स्टार्टेड बिल्डिंग SaaS, कि मैंने मार्केटिंग एंड रिटेंशन टीम के लिए बनाया है, ठीक है, बट उसको कन्विंस करना पड़ रहा है टेक एंड प्रोडक्ट को Correct. इंटीग्रेट कराओ उससे. एंड वो पुश करता रहता है उसको. हाँ, और वो बोल रहा है कि ऑलरेडी तुम 3 टूल करा चुके हो. तो इंटरनल पॉलिटिक्स इज बहुत अ है. huge big thing, which if I go with the Clever Tap, it becomes easier because they're एंड already ऑल्सो इसमें एक और integrated. चीज़ मैंने नोटिस की है, ये जो क्लेवर टैप जैसे टूल्स इंटीग्रेट होते हैं किसी के B2C ऐप्स में, एक बार इंटीग्रेट हो गया ना, उसको हटाना इज डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल है. क्योंकि वो टेक टीम के पास ना वो पूरा महीने का एक स्प्रिंट है. हाँ. So for them to sell this as an add-on is super easy, हाँ. and for me to crack a customer became super, which is मार्केटिंग एंड रिटेंशन टीम आर सेटिस्फाइड. हाँ. उसको अपने PM के पास और अपना CTO से कन्विंस next quarter, next sprint, next ये, तो वो बहुत ही खिचड़ी. The third thing that happened was 6 months into our pivot, AI exploded. ओके. तो अगर मैं 6 महीने बाद पिवट करता तो शायद मैं AI में पिवट करता, राइट. एंड देन AI स्टार्टेड हैपनिंग. तो समवेयर आई वाज आल्सो लाइक, डू आई वांट टू कीप फाइटिंग दिस बैटल व्हेन आई सी कि यहाँ पे स्केल आसानी से हो जाएगा, और डू आई पिवट अगेन इनटू समथिंग AI, where I really think it was a good decision के we got acquired. We started seeing some very big customers starting to use our tool. An right? entire team of Rehook became a part of Clever Tap. Yeah. And it also gave us time to be sort of on the sidelines as we scale this to see AI world में क्या हो रहा है. हाँ. Right? क्योंकि अभी बहुत noise है. हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है. हाँ. तो उस सेंस में आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन. द काइंड ऑफ कस्टमर्स वी वर्क विद नाउ, वो मुझे क्रैक करने में सालों लग जाते हैं, जो कि मैं क्लेवर टैप के साथ बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ अभी. तो एंड SaaS लर्निंग इस सेंस में ये हुई है फ्रॉम दैट एंटायर पॉलिटिक्स थिंग, कैन यू बिल्ड समथिंग जो कि ज़्यादा इंटीग्रेशन ना चाहिए हो. एटलीस्ट तुम्हारा 0 to 1 प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए कि तुम 5 टीम पे डिपेंडेंट नहीं हो इसके ऑनबोर्डिंग के लिए, राइट. तो कुछ उस तरह से तो SaaS की भी लर्निंग्स वो है कि ईजियर, आई थिंक 0 to 1 हो जाता है ना, तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं. तो आपको 0 to 1 के हिसाब से ही अपना फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि ईजियर टू ऑनबोर्ड, ईजियर टू सेल,
easier to try and the first wow happens without integration. उस तरह से हाँ. एंड इसमें आपके सिर्फ YC वाज द इन्वेस्टर? नहीं, we had others also. डेमो डे पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया. एंड लाइक वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस एनीवन कि वी आर सेलिंग द कंपनी और गेटिंग एक्वायर्ड? It wasn't. We have been lucky that ways for the investors that we have कि उन्होंने काफ़ी हम पे ही छोड़ रखा था कि तुमको जो लगता है तुम्हारे लिए सही है. तो BNext was our next ओके. biggest investor. And Hero Chaudhary, who's the managing director at BNext, एक भी बार कुछ ऐसा नहीं हालांकि whatever you feel is right for you and the company करो. Very founder friendly that ways. And YC तो है बहुत founder friendly. वो तो उनकी इसलिए मैंने उनका क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि वो सही के अलावा उनको नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता उतना. नहीं, They give consent towards things. yeah. So they don't really care about. So how's your current scenario with what all things you work at CleverTap? What all things you grow over there? Your promotions is a vertical within CleverTap itself. So it's the same team that now operates like a vertical inside CleverTap. So My this is a whole new vertical inside that now. which is the promotions piece that's there. My role has initially was almost everything. Like मैं sales भी मैं ही कर रहा था और वो सब मैं कर रहा था. अभी it's you have teams handling all of this, right? There's a sales team, there's an onboarding team, or technical account manager, or customer success manager. So my role has moved more to one, lead my vertical one. The second thing is to support most of these sales operations so that they are able to sell promotions better. Okay. And as a founder you have 15-20 tensions every day. तो वो टेंशन वाला बकेट एकदम खाली हो गया है अभी. तो वो मैं सोच रहा हूँ कि हाउ टू फिल इट. इट फील्स अ वॉइड. मतलब सडनली तुम फाउंडर से जब यहाँ पे आते हो तो तुमको बहुत खाली लगता है एकदम और आपको लगभग 8 से 9 साल बाद ना हाँ तो लगता है करूँ क्या मैं अब. टाइम बचता है आपके पास बहुत. हाँ मतलब वो दिमाग बहुत खाली लगता है सडनली क्योंकि सर तुम 24 घंटे किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो कि अच्छा ये फट रहा है या ये हो रहा है या सम फायर फाइट. अब वो नहीं है थिंकिंग माइंड में. अब सडनली वो सब चला जाता है तो यू सडनली फील वेरी एम्प्टी ऑल्सो. But I think somewhere I needed it also. Like I'm spending, I think I needed some time. So 22 to 24, I had a lot of personal battles as well while I was doing all of this. So I'm taking time. I'm trying to rebuild myself as well, doing things that I enjoy doing. I'm also taking therapy on the side to get back into a frame of mind. And like I went back to playing sports regularly after What do you like 15 years I think. What do you like playing now? यार ये बहुत ही क्लीशे हो गया है अब. Like I play paddle. Okay. तो अभी पिकल बॉल एंड पैडल 2 स्पोर्ट्स आए हैं. तो पैडल खेल रहा हूँ. माय प्राइमरी स्पोर्ट वाज बास्केटबॉल अदरवाइज, बट मैं बास्केटबॉल खेलने की कोशिश करी. मेरा माई नी गेव अप इन हाफ एन आवर, so I can't play that. But paddle I've taken good liking to. तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार खेलने की कोशिश करता हूँ. But like even following sports for that matter, though doing things that I enjoy doing and trying to build myself back. But ऐसे don't you feel कि मतलब for example after so many years मतलब 8-9 साल बाद दोनों कंपनी मतलब you founded and 10 चीज़ें दिमाग में रहती थी सारा टाइम, कुछ ना कुछ बसड़ मची रहती थी. अचानक से जिंदगी में शांति आ गया तो which you talked about the emptiness. Now you are working with some other company. तो यहाँ पर still you have that freedom और आपका वो freedom भी चला गया है या or you have someone to on your head की asking questions, ऐसा कुछ है? नहीं यार, I've been very lucky. Like CleverTap's founder is an inspirational fellow. I don't know if you know. I have seen him, his profile, but never talked, never got a chance. And it's every time I talk to him, I feel like I'm learning something.
He's given me enough and more freedom to how I want to operate there. Really good guys. There are 3 founders, all 3 of them. And it's not an Indian company, na? Clevertap is Indian. All 3 founders are based in India. All 3 founders are Indian. 1 founder is based in the US. But And their head office is in Goregaon. Goregaon. हाँ, which I keep telling him also कि मतलब you should be more known in the Indian ecosystem. बहुत कम लोग जानते हैं, पता है? क्योंकि you are the second person who's saying कि Clevertap Indian company नहीं है. और मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मतलब ये इंडियन पूरे इकोसिस्टम में ना ये बहुत कम दिखता है इनके फाउंडर्स. हाँ. मतलब दिखते ही नहीं है, वो जाते नहीं है कहीं पर. वो खुद सबको जानते हैं, बट वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही पीआर के अगेंस्ट और उस टाइप के उनके चुपचाप पीआर पे नहीं है एग्जैक्टली. काम करने वाले लोग हैं. वेरी नाइस पीपल. आई हैव यूज्ड Clevertap. मतलब And Anand, especially, who I interact with often, मतलब his story is crazy, dude. मतलब he lost his father at 12, and I'm not the right person to tell it also, but he's been doing stuff since 12 years old. मतलब door to door साबुन बेचने से, electronics ठीक करने से. He is a BCom graduate who learned coding and built a tech SaaS, dude. and the main registered office is still in India ना, प्राइमरी कि यूएस है. उनका क्या बोलते हैं वही जो फ्लिप वाला कॉन्सेप्ट होता है. तो द पेरेंट कंपनी करंटली इज इन द यूएस. हाँ, ये फ्लिप हुई थी बीच में शायद ना. हाँ, बट इट्स अ यूनिकॉर्न ऑल इन ऑल Also इंडिया unicorn, ना? कंपनी. यूनिकॉर्न और वेरी क्लोज. ऑल द एम्प्लॉयज आर बॉम्बे बेस्ड मोस्टली, बट इंडिया की कंपनी है. और पता है ये बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि Clevertap इज नॉट इन इंडियन कंपनी. मुझे भी ऐसा Which कभी is कभी लगता है. sad. हाँ, मतलब आई थिंक आनंद हैज सो मच टू गिव टू द इकोसिस्टम. उससे जाके कोई बात करे तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा, बट खुद से and project we नहीं never करता. we never ever see. I also never seen कि जितने जैसे फॉर देम एनी B2C कंपनीज D2C हो गया, इनके लिए जिनके ऐप है इन शॉर्ट, हाँ, दे आर वन पर्सन, दे शुड बी देयर एवरीवेयर. तो इनका नाम है कहीं वो देखता हूँ, स्पॉन्सर देखता हूँ, नाम है इनके किसी के लोगों को एज अ पैनल में मेंबर देखता हूँ, हाँ. नाम है कोई मीडिया के आर्टिकल देखता हूँ, नाम है कोई अवार्ड्स का वो आता है, कुछ आता भी है तो साइलेंटली चला जाता So, होगा. बहुत ही मतलब विच इज ऑल्सो मतलब वेरी ओल्ड स्कूल थिंकिंग ना कि मेरा विच इज ऑल्सो मतलब आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. आई डोंट मीन ओल्ड स्कूल इन अ बैड वे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिकेगा और वो चल रहा है, तो मुझे बिना बात का PR और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. विच इज़ जो कि बहुत मुश्किल है. मतलब आज के दिन में कितने लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे लाखों करोड़ों यूनिकॉर्न बना पाए हैं. वो मतलब इट्स हॉरिबली डिफिकल्ट टू डू, आई नो. राइट. तो बट हाँ, वैसा है. So what's ahead for you? Like you'll be working here for some more time, like you'll be thinking something else after this, or you'll be just relaxing working here for some more time? Here I'm working here, I'm enjoying that. There are new things happening here as well. The entire AI wave is now hitting Clevertap, and how can MarkTech change with AI is I've got front row seats to how they are looking at it and what they are building here. So which is an interesting work to be a part of as well. तो अभी मैंने फ्यूचर का उतना सोचा नहीं है. आई एम happy doing this. Lots to learn here as well. Being part of their entire AI change that they're going through right now as well. And then let's see. Life takes interesting shifts. वो किसी को पता नहीं होता कब क्या. दूसरा चीज़ ये है कि पिछली बार मैंने शुरू किया था कि अच्छा मतलब FanFight happened because it was a problem I was trying to solve for myself broadly कि अच्छा ये है, यहाँ इंडिया में नहीं है, ये बनाते हैं. Shopper Rehook was a little forced, Okay. right? कि अच्छा वो got acquired, अब कुछ करना I है. need to move और कुछ करते हैं उस तरह से. Which was another learning कि let a problem come to you that you feel very deeply about. क्योंकि कोई चीज़ सॉल्व करनी है ना तो उस पर 10 साल लगेंगे और बहुत ऊपर नीचे ऐसे होगा. ओनली इफ़ यू हैव कन्विक्शन अबाउट द प्रॉब्लम कैन यू राइड थ्रू दैट अप एंड डाउन एंड एवरीथिंग. तो
if and when I start again, I will start when I feel deeply about a problem. कि अच्छा ये या तो अपने लिए या किसी और के लिए ये सॉल्व करने का बनता है, तो वो है. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि कभी कभी द थिंग विच यू टोल्ड ना कि जैसे एक कंपनी बंद हो गई, लोग प्रेशर में भी दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं हाँ हाँ. कि जस्ट बिकॉज आई वॉज अ फाउंडर आई नीड टू बी अ फाउंडर. Yep. ये है, मतलब मैंने पहले भी बहुत सारे लोग, चलो ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि लोग छोड़कर दे स्टार्ट डूइंग जॉब और समवन वर्किंग विद द लीडरशिप टीम. हाँ. So that is where people need to think upon कि that is also a right way. Which is also, मतलब I see you're completely correct कि over the last 8-9 years, one of the big learnings which I will tell anyone कि कंपनी शुरू करने का रीज़न एक ही होना चाहिए कि मुझे एक प्रॉब्लम दिखी है जिसको I can't stop thinking about it, I need to solve for it. Okay, it's keeping me up. जब तुम किसी और की थीसिस पे भी बनाते हो ना, तो भी तुम्हारा जब बुरे दिन होते हैं तो तुम्हारा मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है. तो इट हैज़ टू रियली रेजोनेट विद यू कि अच्छा इसको सॉल्व करना है. तो गिव इट टाइम. कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अच्छा नहीं हो रही नौकरी, छोड़ो, कुछ करते हैं. तो 6 मतलब they'll spend 2-3 months just evaluating ideas. तो logically you can get to an idea, but That's a forced thing. But can you ride through the ups and downs just with a logical idea becomes the difficult. thing which you told now, this is very common now in 2025. What happens with the early stage founders these days? वो क्या सोचते हैं कि बाकी लोग सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो मुझे स्टार्टअप करना है, and they start solving those problems which is already solved, and they are even complicating the problems. The solutions, if I talk about existing solution को वो complicate करके और उसको कुछ कर रहे हैं. तो इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं, टाइम तो चलो ठीक है, जस्ट बिकॉज इनको चलाना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, इनको फाउंडर बनना है. So which is very common these days. People start leaving their job, people start thinking कि ये वाले प्रोडक्ट चल रहा है, इस तरह के प्रोडक्ट मैं भी ऐसा बना लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ. तो which is being very common. That innovation and a real problem solving वाले तो चलो आप आज के टाइम पे कम ही आने हैं, वो किसी किसी कैटेगरी में आएंगे. Now everything is either a replica of something or a +1 of replica of anything. So I think I'm also, like, in my free time I'm also spending time trying to figure out how to find problems or where to find problems. मतलब तुम कुछ तो करते रह सकते हो कि वहाँ तक जाने के लिए where अच्छा pools of money कहाँ है, किस सेगमेंट में लोग are okay to pay, right? So वो which are also intellectual discussions I think you should keep having with yourself or with your friends or with your founder friends कि अच्छा ऐसा है, दिमाग चलाते रहने के लिए. And finally तो I'm saying keep having those discussions with yourself, but don't stop at the first thing that like ये interesting लग रहा है. I think give your mind enough free time to keep exploring different pools, different ideas, to finally see कि तुम्हारे साथ क्या resonate कर रहा है. किसी और को देख के नहीं बन पाता वो. जैसे I've reached उस तरह में कि अच्छा कुछ areas मुझे interesting लगते हैं, right? जैसे AI अभी बहुत ज़्यादा AI कर रहे हैं सब, बट AI में एक तो हो गया कि फ्रंट फेसिंग AI हो गया कि तुमने B2C या B2B फ्रंट फेसिंग किसी के लिए AI बनाया. बट आई ऑल्सो फील देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन हाई ऑप्स कॉस्ट इंडस्ट्रीज जिसमें तुम AI बैकएंड पे यूज़ कर रहे हो तुम्हारे ऑप्स कॉस्ट बहुत कम करने के लिए, विच चेंजेस एवरीथिंग, राइट? तो ब्रॉड थीम्स तुम डिस्कस करते रह सकते हो अपने के लिए, बट आइडिया पे जीरो इन करना शुड बी अ लॉन्गर प्रोसेस देन कि ये चल रहा है और ये हो रहा है और ये थीसिस उसकी आई है. अगर किसी की थीसिस आई है मतलब वो 15 लोगों को पता है और 10 लोग बना रहे हैं उसमें, और तुम लेट हो चुके हो ऑलरेडी, राइट? तो वो भी बात है. What is that one thing which you feel like every founder should keep in mind when any offer of acquisition comes through, कि ये चीज़ तो मुझे कर लेनी चाहिए ताकि बाद में मैं ना सोचूं कि ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था?
कॉन्टेक्स्ट इसमें ये होना चाहिए कि तुमको क्या चाहिए अभी एट दैट पॉइंट इन लाइफ, ठीक है. ठीक है? क्योंकि आई हैव सीन फाउंडर्स गेट टू ग्रीडी एंड दैट बैकफायर ऑल्सो, कि ये तो इतना दे रहा है, ये तो आगे जाके ये बनेगा, तो वो भी बैकफायर होता है. आई हैव सीन फाउंडर्स अंडर सेल ऑल्सो, कि पता नहीं आगे क्या होगा. तो ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर इज ऑल्सो बैड, ऑपरेटिंग आउट ऑफ Delusion. exuberant delusion is also bad. तो वो रियलिटी में रह के ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे तुम खुद से ट्रूथफुल होना शुरू हो जाओगे ना, विच इज़ नॉट ईजी, वहाँ पे बाकी सब चीज़ें फॉल इन टू प्लेस सॉर्ट ऑफ कर जाती थोड़ा है. इजी होता है. तो मेरा क्या तुमको अग्रीमेंट में देखना है, वो सब देखना है, वो एडवाइस नहीं है. वो तो तुम लॉयर हायर कर लोगे, वो तुम देख लोगे कि अच्छा कब तक मैं यहाँ रहूँगा, कब तक नहीं रहूँगा, वो बेसिक चीज़ें हैं. बट खुद से सच बोलना कि मुझे इससे क्या चाहिए, मेरी अभी फाइनेंशियल हालत है क्या. तुम्हारी फाइनेंशियल हालत कुछ नहीं है, तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, 5,000 करोड़ कमाऊंगा. भाई उस पॉइंट पे ऐसा है तू 10 करोड़ भी कमा लेगा. दैट इज योर फक यू रिटायरमेंट मनी, राइट? 10 crore you put in a mutual fund, you get 1 crore a year, you can Correct. build anything in your life from that point on, because you're not dependent on a salary, right? So being truthful in that regards also becomes very important. कि तुम्हारा situation क्या है अभी? Is this an idea that you're ready to spend the next 20 years on? Is this the best idea that you can come up with? कि सिर्फ ईगो बोल रही है कि इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, राइट? वो जज करना बहुत ज़रूरी है. बट ये तो सबके साथ ही, मैक्सिमम के साथ ना, पहला थॉट तो यही आता है जब भी मान लो जब कंपनी अच्छी चल रही होती है ना किसी की, और जब उनको एक्विजिशन ऑफर आता है, तो बहुत लोगों का यही थिंक रहता है कि मैं इसको और बड़ी बनाऊंगा अभी, तब मैं बेचूंगा. हाँ, जिनकी नहीं चल रही उनको ऑफर आ रहा था, इट्स अ डिस्ट्रेस सेल, दैट इज़ ओके, उसका मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको तो बेचना ही है, उसको आज ऑफर आ जाए तो बेच देगा वो. बट उनको ऑफर्स भी नहीं आते सामने से, देन दे गो आउट फॉर गेटिंग सोल्ड. तो बट वो वाले में अंडरस्टैंडिंग लाइक एज अ फाउंडर वो एक कॉल होता है ना, तो बट हाउ डू यू, वो घंटी कैसे बजेगी उस कॉल की कि हाँ ये अभी हो गया है. यार उसमें 2-3 चीज़ें ये होती है ना, स्पेस की अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें हो ही जाती है कि अच्छा कितने कंपटीशन आ रहा है, हाउ वेल फंडेड इज़ दैट कंपटीशन, वेयर डू आई स्टैंड इन दैट फाइट. तो रियलिस्टिकली कितना बड़ा हो सकता है वर्सेस इन योर माइंड वो कितना बड़ा हो रहा है, वो बहुत डिफरेंट है. तो आई थिंक यू ऑल्सो नीड अ कपल ऑफ साउंडिंग बोर्ड्स हु यू कुड रियली टॉक टू, जो कि सच में बता पाएंगे कितना बड़ा हो सकता है. दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारा खुद का करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, एंड कैन यू बिल्ड दैट अप टू टेक बिगर स्विंग्स लेटर इन लाइफ. तो फाइनली मतलब आई डोंट थिंक अ बिजनेस गिविंग यू साइंस ऑफ बीइंग अ $1 billion बिजनेस, वो उतना तो समझ में आ जाता है कि मतलब मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है, कि तुम ज़बरदस्ती डिल्यूजनल हो रहे हो उसको लेके कि ये हो जाएगा चल जाएगा. एक चीज़ होती है कि मैं ये 2 चीज़ और करूँगा तो चल जाएगा, वर्सेस के अभी इतने मैट्रिक्स ऐसे एक्सप्लोड कर रहे हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद स्केल, देन तो यू वोंट सेल, राइट? एग्जैक्टली. राइट, बट तुम किस मैट्रिक को कितना इंपॉर्टेंस मांग रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. अगर तुम्हारे सर्वर्स लोड ले ही नहीं पा रहे हैं और तुम ऐड भी नहीं चला रहे हो, फिर भी वो बढ़े जा रहा है, ऑर्गेनिक्स तुम्हारे 120% पे है, फिर तो यू आर स्टूपिड टू सेल, है ना? तो हाउ डू यू लुक एट व्हाट मेट्रिक एट व्हाट पॉइंट टू ड्राइव योर डिल्यूजन इज इम्पॉर्टेंट probably at that time. Anything last piece of advice for anyone who is building like anything, like for 4-5 years, raise some money, but when they get into this selling process, कि उसको एक ये चीज़ दिमाग में रख लेनी चाहिए. डिल्यूजन वाला पार्ट तो चलो ठीक है, बट ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि आगे की जीवन थोड़ी आसान हो. तो बहुत लोग बेचने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने गलत बेच दिया.
यार फाइनलिटी तो कुछ नहीं होती, ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने गलती नहीं करी है लाइफ में। गलत बेच दिया दो चीज़ों से होता है, एक होता है कि अच्छा आफ्टर सेलिंग यू सी के अभी ये स्केल बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो क्या मैं इसको बाद में बेचता तो, बट वो स्केल could be happening because of other factors now, right? Like मेरे केस में क्लेवर टैप के हज़ारों कस्टमर है तो वो स्केल अच्छा कर रहा है अभी, ठीक है, बट क्या मैं वो कर पाता, वही ठीक है, तो वो दैट विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि खुद से तुम इसको कितना स्केल कर पाते, कितने टाइम में कर पाते, तुम्हारा अभी तक वो कैसा चल रहा है, तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रिग्रेट हैपन्स मोस्टली आफ्टर यू सोल्ड, इफ़ यू सी कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड ही कर गया अब ये, राइट? इफ़ यू लुक एट ब्लिंकिट ऑल्सो आफ्टर हाँ। एक्विजिशन वो कैसे इट्स उसके बाद ही गॉन तो हुआ क्रेजी, है। राइट? बट क्या वेयर ब्लिंकिट वॉज देन, could it have had the financial muscle or the user muscle that Zomato brought with it to make it what Blinkit is right now? And in that respect also, like when you're signing, uh, if it's a separate vertical, Blinkit is a separate vertical, I'm sure they have performance based things, right? कि अच्छा इतना revenue hit करेंगे तो ये होगा, तो you can, if you are very sure of कि अच्छा this will scale greatly, you can bake that into the agreement as well, like some sort of revenue share with the founders or some sort of कि अच्छा इतना स्केल करेगा तो इतना स्टॉक ऑप्शंस मिलेगा या जो मिलेगा, तो ऑल ऑफ दैट कैन बी बेक्ड इन इवन इफ़ यू फील कि अच्छा ये स्केल करेगा बाद में, राइट? बट ये रिग्रेट कि अब ये स्केल कर रहा है तो मैं भी इसको इतना स्केल कर पाता, वो मुझे वो अगेन वो आई डोंट थिंक वो सही है, क्योंकि बहुत एनवायरनमेंट चेंज हो Changes जाता है है। उसके बाद। यस, Thank you so much, Akhil, and it was nice having conversation with you. 3 साल से we were connected and finally we Yes. met for the first time. होपफुली वी मीट मोर नाउ। Yeah, definitely. Thank But आप you so बैंगलोर में थे much. तब मैं मिला नहीं, अब मैं मुंबई आया तो मिला हूँ आपसे। हाँ ऐसा ही होता है लाइफ में, कुछ पता नहीं होता कैसे क्या। With this, thank you so Thank much, you. and thank you guys watching this, and we'll be back with the next episode.